لاہور ہائی کورٹ نے ایفی ڈرین کیس میں حنیف عباسی کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ نون لیگی رہنما نے 25 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ ایفی ڈرین کوٹا کیس میں سزا کے خلاف مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی اپیل پر لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نون لیگی رہنما حنیف عباسی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے گزشتہ روز سماعت کی۔ پاکستان نے اب ابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR کے مطابق میزائل سسٹم کا مقصد خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو بڑھانا ہے۔ ISPR کے مطابق آج کے لانچ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، اسٹریٹجک پلانس ڈویژن، اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے سینئر افسران، سائنسدان اور انجینئرز نے دیکھا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کامیاب ٹیسٹ میں تعاون پر تمام لوگوں کی تکنیکی صلاحیت، لگن اور عزم کو سراہا۔ حفاظتی ضمانت کی درخواست العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں دائر کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سرنڈر کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، عدالت تک پہنچنے کے لیے گرفتاری سے روکا جائے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے صفا کے 3 انتہا کر دی۔ صہیونی فوج نے غزہ کے اسپتال پر بمباری کر کے علاج معالجے کے لیے موجود 800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ سینکڑوں شہری شدید زخمی ہیں۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں اسپتال کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ حملے کے بعد ہر طرف چیخ و پکار سنائی دیتی رہی۔ حملے میں شہید ہونے والوں میں مریض، ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف شامل۔ متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے شہادتیں بڑھنے کا خدشہ۔ پاکستان نے بھی غزہ کی پٹی میں اسپتال پر ہونے والے اسرائیل کے فضائی حملے کی شدید مذمت کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسپتال میں زخمی مریضوں اور پناہ گزینوں پر حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ سویلین آبادی اور املاک کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے روس کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کو منظور کرنے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ پاکستان نے کئی عرب اور OIC کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر اس قرارداد کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے پر غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے اور روسی مسودہ قرارداد جس میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی آج OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی آج 18 اکتوبر کو جدہ میں OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اجلاس اسلامی تعاون تنظیم میں غزہ کے بحران پر تبادلہ خیال کے لیے بلایا گیا۔ وزیر خارجہ غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر پاکستان کے تحفظات بھی پیش کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس اور چین پائیدار ترقی کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چین کے شہر بیجنگ میں 30ویں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ شی جن پنگ کے اہم اقدامات کی 10ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ فورم کے ذریعے ملکوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ فورم کے تحت جاری منصوبوں کی کامیابی پر خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کو جدید اور وسیع کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر CTD نے پنجاب کے مختلف شہروں میں 157 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ترجمان CTD کے مطابق کارروائیاں لاہور، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، رحیم یار خان شیخو پورہ اور راول پنڈی میں کی گئی۔
ग्राम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बीजिंग में तीसरे बैलेट एंड रोड फॉर्म के में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से गजा में इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर दहशत गर्दी के अलमनाक वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। 18 अक्टूबर 2007 को जब साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो तवील खुद साख्ता जलावतनी के बाद वतन पहुंची तो कराची एयरपोर्ट पर जियालों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। आवाम के जमे गफ़ी के बायस बेनज़ीर भुट्टो की खुसूसी ट्रक ने 4 साल तक का सफ़र, मिनटों का सफ़र कई घंटों में तय किया। कई घंटों के सफ़र के बाद जियालों का ये कारवां कारसाज पहुंचा तो जोरदार धमाके हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सानहा कारसाज के शहीदों की कुर्बानी रायगा की जाएगी। यौम शोहदा कारसाज के मौका पर अपने पैगाम में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि 18 अक्टूबर के शोहदा की कुर्बानी बहादुरी और वफादारी की तारीख है। उन्होंने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम जमहूरियत के शोहदा के जद्दोजहद का समर है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दुबई से पाकिस्तान रवानगी के लिए खसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। नून लीग अमारात ने तैयारियां मुकम्मल करते हुए प्रोटोकॉल जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून अमारात का कहना है कि कारकुन दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया से मुकम्मल ताउन और कानून की पासदारी करेंगे। एयरपोर्ट पर नारेबाजी से इज्तनाब किया जाएगा। नून लीग अमारात ने बताया कि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की रवानगी दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से होगी। और एक महीने से ज़ायद अरसा अपनी कदर में कमी करने वाला अमरीकी डॉलर फिर महंगा होने लगा है। आज अमरीकी डॉलर ओपन मार्केट में 3 रुपये जबकि इंटरबैंक में 1 रुपये 47 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 47 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपये 50 पैसे का हो चुका। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शो इंडेक्स 101 पॉइंट्स के इजाफे से 49,632 पर आ गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने एफी ड्रैन केस में हनीफ अब्बासी की सजा कलअदम करार दे दी है। नून लीगी रहनुमा ने 25 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। एफी ड्रैन कोटा केस में सजा के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज केस की समाअत की। दौरान समाअत हनीफ अब्बासी अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत ANF के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हनीफ अब्बासी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की इंक्वायरी रूल्स के मुताबिक नहीं हुई है। हनीफ अब्बासी को ट्रायल कोर्ट ने 25 साल कैद की सजा सुनाई। जिन अफराद ने एफी ड्रेन का कोटा दिया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हनीफ अब्बासी के वकील ने बताया कि एफी ड्रेन जितनी दी गई सारी अद्वयात में इस्तेमाल हुई और इन अद्वयात की मार्केट में बाकायदा फरोख्त भी हुई है, जिसकी रसीदें मौजूद हैं। ट्रायल कोर्ट ने सजा देते वक्त दुरुस्त हालात का जायजा नहीं लिया। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने एफी ड्रेन केस में हनीफ अब्बासी की सजा कलअदम करार दे दी है। नून लीगी रहनुमा ने
25 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ ایفی ڈرین کوٹا کیس میں سزا کے خلاف مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی اپیل پر لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نون لیگ رہنما حنیف عباسی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے گزشتہ روز کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت حنیف عباسی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ دوران سماعت اے این ایف کے وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ حنیف عباسی کے خلاف درج مقدمے کی انکوائری رولز کے مطابق نہیں ہوئی ہے۔ حنیف عباسی کو ٹرائل کورٹ نے 25 سال قید کی سزا سنائی۔ پاکستان نے ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل سسٹم کا مقصد خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو بڑھانا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آج کے لانچ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے دیکھا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کامیاب ٹیسٹ میں تعاون پر تمام لوگوں کی تکنیکی صلاحیت، لگن اور عزم کو سراہا۔ صدر، وزیر اعظم پاکستان اور سروسز چیف نے بھی اس کامیابی پر اسٹریٹجک فورس کے تمام ارکان کو مبارکباد پیش کی۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے سینئر رپورٹر علی اصغر بھٹی سے۔ جی علی اصغر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، پاکستان نے آج ابابیل میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ پاکستان نے ابابیل میزائل سسٹم کا کامیاب آپریشن تجربہ کیا۔ آپریشن ازمیسی پرواز کا مقصد تھا مختلف ڈیزائن، تکنیکی پیرامیٹر اور ہتھیاروں کے نظام کا جائزہ لینا تھا۔ میزائل سسٹم کا مقصد ڈیفنس کو مضبوط بنانا تھا۔ ابابیل میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ چیئرمین چیف آف اسٹاف کمیٹی اور دیگر اعلیٰ عسکری حکام نے بھی دیکھا۔ چیئرمین چیف آف آرمی اسٹاف کمیٹی ابابیل میزائل سسٹم کا کامیاب تجربے پہ عسکری حکام کو بھی مبارکباد دی۔ جی بہت شکریہ علی اصغر بھٹی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ حفاظتی ضمانت کی درخواستیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں دائر کی گئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ سرنڈر کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، عدالت تک پہنچنے کے لیے گرفتاری سے روکا جائے۔ نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں متن کے مطابق نواز شریف 21 اکتوبر کو اسلام آباد لینڈ کریں گے۔ عدالت پہنچنے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ نواز شریف اسپیشل فلائٹ سے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی دونوں درخواستوں پر رجسٹرار آفس نے کوئی اعتراض عائد نہیں کیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے سفاکیت کی انتہا کر دی ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے ہسپتال پر بمباری کر کے علاج معالجے کے لیے موجود 800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ سینکڑوں شہری شدید زخمی۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں ہسپتال کی عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ حملے کے بعد ہر طرف چیخ و پکار کی صدائیں۔ حملے میں شہید ہونے والوں میں مریض، ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف بھی شامل ہے۔ متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے شہادتیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ نشانہ بننے والے ہسپتال میں ہزاروں شہری علاج معالجے اور پناہ لینے کے لیے موجود تھے۔ قابض فوج نے اقوام متحدہ کی پناہ گاہ پر فضائی حملہ کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے غزہ میں الاہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے کے بعد 3 روزہ سموک کا اعلان کر دیا۔ مختلف سیاسی دھڑوں نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں سے اسپتال پر مہلک اسرائیلی حملے کے خلاف بدھ کو تجارتی ہڑتال کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ فلسطینی شہری دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ شہر کے الاہلی ہسپتال پر اسرائیلی حملہ 2008 کے بعد سے لڑی جانے والی 5 جنگوں میں سب سے مہلک اسرائیلی فضائی حملہ ہے۔ الاہلی عرب اسپتال میں قتل عام ہماری تاریخ میں بے مثال ہے۔ پاکستان نے بھی غزہ کی پٹی میں اسپتال پر ہونے والے اسرائیل کے فضائی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ نے مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں زخمی مریضوں اور پناہ گزینوں پر حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ سویلین آبادی اور املاک کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے۔ عالمی برادری غزہ پر اسرائیلی بمباری رکوانے کے لیے فوری ایکشن لے۔ اسرائیل فوج نے غزہ میں اسپتال پر بمباری کر کے علاج معالجے کے لیے موجود 800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں شہری زخمی ہیں۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں 157 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائیاں لاہور، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، رحیم یار خان، شیخوپورہ اور راول پنڈی میں کی گئی ہیں۔ لاہور کے سرحدی گاؤں سے داعش کے 2 اہم کمانڈر بھی گرفتار۔ ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے قبضہ سے بارودی مواد، 12 ڈیٹونیٹرز، پرائمہ کارڈ، موبائل فون، اسلحہ اور نقدی برآمد کی گئی۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے روس کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کو منظور کرنے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ پاکستان نے کئی عرب اور OIC کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر اس قرارداد کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے پر غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے اور روسی مسودہ قرارداد جس میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا، سلامتی کونسل کی طرف سے منظوری میں ناکامی انتہائی مایوس کن ہے۔ اس قرارداد کی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے مخالفت کی تھی، جبکہ البانیہ، برازیل، ایکواڈور، گھانا، مالٹا، سوئٹزرلینڈ اور اس کے علاوہ اس قرارداد پر رائے شماری میں حصہ نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے اس قرارداد کو منظوری کے لیے مطلوبہ 9 ووٹ حاصل نہیں ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی آج اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی آج 18 اکتوبر کو جدہ میں OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اور چین پائیدار ترقی کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چین کے شہر بیجنگ میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران روسی صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ شی جن پنگ کے اہم اقدامات کی 10ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ فورم کے ذریعے ملکوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ فورم کے تحت جاری منصوبوں کی کامیابی پر خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کو جدید اور وسیع کیا جائے گا۔ اور خبر آپ کو دیں کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپسی پر دہشت گردی کے المناک واقعے میں 150 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے اور سینکڑوں زخمی تھے۔ 18 اکتوبر 2007 کو جب سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو طویل خود ساختہ جلاوطنی کے بعد وطن پہنچی تو کراچی ایئرپورٹ پر جیالوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ عوام کے جمع غفیر کے باعث بے نظیر بھٹو کے خصوصی ٹریک نے کارساز تک کا منٹوں کا سفر کئی گھنٹوں میں طے کیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جیالوں کا یہ کارواں کارساز پہنچا تو اچانک 2 زوردار دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں نے تمام خوشیاں قیامت صغریٰ میں تبدیل کر دی۔ دھماکہ ہوتے ہی ایسی افراتفری مچی کہ ہر طرف چیخ و پکار کی صدائیں اور ایمبولینس کے سائرن گونجنے لگے۔ اس افسوسناک واقعہ میں 150 سے زائد افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سانحہ میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد کے ساتھ سرکاری ملازمتیں اور مفت رہائشیں بھی دی تھیں۔ اسی سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ سانحہ کارساز کے شہیدوں کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یوم شہداء کارساز کے واقعے پر اپنے پیغام میں سابق صدر آصف علی زرداری نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ 18 اکتوبر کے شہداء کی قربانی بہادری اور وفاداری کی تاریخ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم جمہوریت کے شہداء کی جدوجہد کا ثمر ہے۔
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पाकिस्तान में अमन होगा, अवाम खुशहाल होगी। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि खुद मुख्तार पार्लियामेंट, आइन की बालादस्ती और अवाम की हुक्मरानी से मुल्क तरक्की करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने दुबई से पाकिस्तान रवानगी के लिए खुसूसी तैयारा बुक करा लिया है। नून लीग अमारात ने तैयारियां मुकम्मल करते हुए प्रोटोकॉल जारी कर दिया। मजीद तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून अमारात का ये कहना था कि कारकुन दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया से मुकम्मल तामुन करेंगे और कानून की पासदारी भी करेंगे। एयरपोर्ट पर नारेबाजी से इज्तनाब किया जाएगा। नून लीग अमारात ने बताया कि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की रवानगी दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से होगी। मुस्लिम लीग नून ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को सुबह सवेरे दुबई से रवाना हो जाएंगे। कारकुन और रहनुमा नमाज फजर दुबई एयरपोर्ट पर ही अदा करेंगे। नून लीगी कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं को अपने हमरा सफरी सामान कम से कम रखने की हिदायत। एक माह से ज्यादा अरसा अपनी कदर में कमी करने वाला अमरीकी डॉलर फिर महंगा होने लगा है। आज अमरीकी डॉलर ओपन मार्केट में 3 रुपए जबकि इंटर बैंक में 1 रुपए 47 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 47 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपए 50 पैसे का हो चुका। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटर बैंक में डॉलर 277 रुपए 3 पैसे का था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होने के बाद 280 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपए का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 101 पॉइंट्स के इजाफे से 49,632 पर आ गया। और आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन, चीनी हम मनसब ली चांग से तीसरे बेल्ट एंड रोड फॉर्म के मौका पर बीजिंग में मुलाकात। निगरान विफाकी काबीना के अरकान और सरकारी अफसरान भी वजीर आजम के हमरा मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत और दरीना पाक चीन ताल्लुकात का जिक्र करते हुए बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक्तसादी, शोबा तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत समेत ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत को तीसरे बेल्ट एंड रोड फॉर्म के शानदार इनकाद पर मुबारकबाद भी पेश की। बेल्ट एंड रोड मनसूबे की वसअत का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मनसूबा मवासलाती रवाबत और मुश्तरका खुशहाली की बदौलत पूरी दुनिया के लिए कलीदी अहमियत रखता है। दोनों रहनुमाओं ने चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तनाजुर में पाक चीन ताउन और मुआशी रवाबित के फरोग के इस्तेदाद पर गुफ्तगू की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की पाकिस्तान की मुईशत के लिए अहमियत का जिक्र करते हुए ये कहा कि सी पैक अपनी तमीर के नए दौर में दाखिल हो चुका है, जिसमें सनती तरक्की, रोजगार की फराहमी के मनसूबे हैं, मादनियात, आईटी और ज़राअत की तरक्की भी शामिल है। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की ज़िलाई क़यादत की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। लोगों का मजमा इकट्ठा करने के दावे। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी इस वक्त साबिक मेयर सरदार नसीम के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं और ये भी बताइएगा कि क्या अवामी सहूलत के दावे करने वाली मुस्लिम लीग नून अवाम को बहरानों से निकाल पाएगी?
جی بالکل، میں اس وقت راولپنڈی میں موجود ہوں. میرے ساتھ میٹروپولیٹن کے جو صدر ہیں سردار نسیم خان صاحب، سابق ڈپٹی میئر راولپنڈی، وہ بھی موجود ہیں. یہاں آج کونسلرز، میئر، ڈپٹی میئر اور دیگر جو لوگ تھے، کونسلر تھے، علاقے کے جو معززین تھے، وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ جمع ہوئے. اور آج کا جو جمع غفیر تھا وہ سردار نسیم صاحب کی دعوت پہ یہاں پہ ہے، اور خصوصی طور پہ میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے آج کی تقریب سجائے گی. سردار نسیم صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ بہت بڑا آج دیکھا ہم نے جمع غفیر ہے، جس نے پاکستان مسلم لیگ ایک نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ سے ابھری ہے. کیا کہیں گے اپنے قائد کے استقبال کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے چیئرمین حضرات، وائس چیئرمین اور کونسلر حضرات کا اپنی طرف سے، اپنے ڈپٹی میئر طارق صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی شارٹ نوٹس پر یہ ہم نے پنجاب کی تاریخ میں پہلا راولپنڈی میں کونسلر کنونشن کرایا ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس طرح خواتین و حضرات ہمارے عہدیدار یہاں موجود تھے، اور جو جوش و جذبہ آپ نے دیکھا کہ جو ہم 2 ہفتے سے ہماری مہم چل رہی ہے، نظر آ رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے کہ جو راولپنڈی شہر سے قافلہ جائے گا وہ پنجاب کا سب سے بڑا قافلہ ہوگا لاہور مینار پاکستان جانے والوں میں. اور گزارش یہ ہے کہ ہم نے، ہمارا یہ عہد ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 21 اکتوبر کو ہم نے مینار پاکستان جانا ہے اور میاں نواز شریف کو چوتھی بار اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے. وکیل کا بھی ہم نے دیکھا کہ جذبہ بڑا بھرپور ہے یہاں پہ. دیکھیں جی، میں اپنی 40 سالہ سیاسی تاریخ میں یہ پہلی بار اس ایونٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ راولپنڈی شہر سے اتنی بڑی تعداد میں خواتین ہمارے ہر جلسے، جلوس، ریلی میں جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ خواتین کی جو تعداد ہوگی وہ تاریخی ہوگی جو راولپنڈی سے لاہور جائے گی. ستائی ہوئی عوام جو ہے، کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد کوئی ریلیف ملے گا؟ کوئی دیکھیں جی، میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کہیں، سپوز میں مثال دیتا ہوں کہ کسی نوکری کی جگہ اپلائی کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو اپنی آپ وہاں سی وی دیتے ہیں کہ میں MBA ہوں، میں بیچلر ہوں، میں انٹر ہوں. تو ہم تو میاں نواز شریف کی سی وی دے رہے ہیں کہ ان کے 3 ادوار دیکھ لیں. اگر ان کے 3 ادوار اس پاکستان کی تاریخ سے نکال دیں تو آج پاکستان صومالیہ اور ایتھوپیا کا منظر پیش کرے. اور 2017 میں جب میاں نواز شریف کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا تھا تو پاکستان جس رفتار سے ترقی کر رہا تھا، اگر وہ رفتار جاری ہوتی تو آج پاکستان ایشیا کا ٹائگر ہوتا. جی بالکل، اگر نواز شریف کی حکومت کو ختم نہ کیا جاتا تو سردار نسیم صاحب کا اور دیگر مسلم لیگی کارکنان کا یہ کہنا ہے. مری پولیس نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 1 ماہ قبل مری میں سگریٹ کے گودام میں ڈکیتی کرنے والے ڈکیت گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر کے مال مسروقی کی رقم 35 لاکھ روپے برآمد کر لی ہے. گرفتار ملزم کمپنی کا ہی ملازم نکلا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری گلزار ناز کی اس رپورٹ. مری پولیس کی مؤثر کارروائی ڈکیت گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر کے مسروقہ رقم 35 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے. گرفتار ملزمان میں نعمان، عبد الرحمان اور حسنین منظور شامل ہیں. ملزمان سے اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیا گیا ہے. ملزمان نے 1 ماہ قبل مری میں سگریٹ کے گودام سے رقم چھین کر فرار ہو گئے تھے. گرفتار ملزم نعمان کمپنی کا ہی ملازم تھا. پولیس ٹیم نے ہیومن ریسورسز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا. شناخت پریڈ کے بعد ملزمان سے 35 لاکھ روپے کی برآمدگی کر لی گئی. گینگ کے مزید ایک رکن کی گرفتاری کے لیے ریڈز کیے جا رہے ہیں. CPO سید خالد محمود ہمدانی کی جانب سے ڈاکوؤں کی گرفتاری اور بڑی رقم کی برآمدگی پر SP صدر محمد نبیل کھوکھر، SDPO مری اور SHO مری انچارج چوکی اور ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جان و مال پر حملہ کرنے والے ملزمان قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ چودھری گل. اور ناظرین، قصور کے تھانہ صدر پولیس کا گنڈا سنگھ کے علاقے میں محمد حسین نام کے گھر پر پرائیویٹ افراد کے ہمراہ مبینہ حملہ، 2 نوجوان شدید زخمی ہو گئے. پولیس اور سویلین نے بے گناہ افراد کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا. مخالفین کی پولیس کے ہمراہ فائرنگ، علی اصغر اور مبشر نامی نوجوانوں کو تشویشناک حالت میں بلش ہسپتال منتقل کر دیا گیا. تھانہ میں تعینات نذیر سب انسپکٹر 5 اہلکاروں سمیت گھر میں گھس گیا. متاثرہ خاندان کے نوجوان کو 2 ماہ قبل قتل کر دیا گیا تھا. متاثرہ خاندان کا کہنا تھا کہ ہمارے مخالفین کے ساتھ ساز باز ہو کر پولیس نے زیادتی کی ہے. اسلام آباد میں وزارت خزانہ کے سامنے فیڈرل سیکریٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی اور CDA ورکرز نے احتجاج کیا. احتجاج میں مظاہرین نے پنشن اصلاحات، گورنمنٹ سمری اور پنجاب میں اساتذہ کی گرفتاریوں کی بھرپور مذمت کی. مزید جانتے اپنے نمائندے تیمور یوسف سے.
जी अभी वजारत ख़जाना के सामने मौजूद है पाकिस्तान फेडरल सेक्रेटेरिएट कोर कमेटी का जो मुलाजमीन है वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब के जो असातिज़ा गिरफ्तार हुए हैं उनकी मज़म्मत के लिए भी ये लोग निकले हुए हैं और जो कल हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात की समरी तैयार की है उसके खिलाफ भी ये लोग निकले हुए हैं। इनसे पूछेंगे ज़रा इनके क्या मुतालबात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CDA लेबर यूनियन की नुमाइंदगी करते हुए फेडरल अगीगा में अमानुल्लाह खान, मेरे चेयरमैन साहब और बाकी मेरे साथी जनाब, मेरे प्रेस सेक्रेटरी और तमाम ये जितने सैकड़ों लोग यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं, ये जो हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है, सबसे पहले तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। वो अपने जायज़ हक के लिए जो हमें आईन पाकिस्तान हक देता है उसके लिए हम निकले थे। रहमान बाजवा साहब की गिरफ्तारी की हम मजम्मत करते हैं और ये जो लीव एनकेशमेंट का खात्मा और पंजाब और मरकज़ में आके लाखों लोगों का पेंशन कटौती, इस्लाहात के नाम पर पेंशन की कटौती जिससे फौज और अदलिया को निकाला गया है, तो हम अदलिया से कहते हैं कि ये जो निगरान बैठे इनके पास तो अपनी तनख्वाह के फिक्स करने का भी इख्तियार नहीं है, तो ये लाखों लोगों का किस तरह जनाब ये कर रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह रहमान बाजवा साहब की क़यादत में वो उसको बाहर निकालेंगे, बाहर आएंगे, यहाँ का हम घेराव भी करेंगे और ये जो कटौती और जितने इस्लाहात है इसको वापस लिया जाएगा। रहमान बाजवा साहब और दीगर जितने भी हमारे साथी जो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और साथ जो लीव इनकैशमेंट और जो पेंशन इस्लाहात के नाम पे जो हमारे हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो बड़े बेचैन हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं इसी तरह हम ये उस वक्त तक मुजाहरे करते रहें, अपने हक के लिए बाहर निकलते रहेंगे जब तक हमारा हक जो है वो हमारा आईनी हक है वो हमें मिल नहीं जाता। जो हमारा आज का ग्रैंड एहतजाज है इसमें तमाम फेडरल की तंजीमें मौजूद हैं और ये रहमान अली बाजवा और हमारे दीगर कायदीन जो हकीका के गिरफ्तार है लाहौर में गैर कानूनी तरीके पे, उनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और रिहाई का मुतालबा करते हैं। हम इस ले पालक गवर्नमेंट से ये अपील नहीं बल्कि हम यहाँ आगाह करते हैं कि अगर ये रिहाई ना हुई तो ये याद रखिए पूरे पाकिस्तान में ये फैल जाएगा। अभी पंजाब के सारे स्कूल बंद हैं, इंशाल्लाह फेडरल के स्कूल भी बंद होंगे, दफातर भी बंद होंगे और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे, अपने कायद को छुड़ा कर रहेंगे। जी मईशत का जो बैकबोन है वो हमारे मुल्क के मुलाजमीन ही है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इनकी जो मुतालबात है वो जल्द से जल्द मंजूर करे। कैमरामैन सरदार। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि खारियां, तांदेलिया वाला, सादकाबाद समेत पंजाब भर में उसातिज़ा का मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। तहसील खारिया में मर्द और ख़वातीन उसातिज़ा ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से GT रोड आज़ादी चौक तक रैली निकाली। एहतजाज के बायस रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रैफिक मुतासर और उसातिज़ा ने लीव इनकैशमेंट, पेंशन रूल में तब्दीलियाँ और स्कूलों की निजकारी के खिलाफ रैलियाँ निकाली। उन्होंने मुतालबा किया है कि फिलफौर उन मसाइल को हल किया जाए बसूरत दीगर मसाइल के हल तक और मुतालबात की मंजूरी तक तलीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल ही रहेंगी। तांदेलिया वाला सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ उसातिज़ा के साथ वालिदैन भी शामिल हो गए। AC तांदेलिया वाला दफ्तर के सामने होने वाले एहतजाजी धरने में टीचर्स और वालिदैन ने शिरकत की। उसातिज़ा का ये कहना था कि स्कूलों की निजकारी की आड़ में हुकूमत उसातिज़ा का मुआशी और बच्चों का तलीमी कत्ल कर रही है। लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली किसी सूरत बर्दाश्त न होगी। तमाम ताकतवर तबके अपने मुतालबात मनवा लेते हैं लेकिन उसातिज़ा को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। छरी मीरवा टू लिंक रोड गुज़िश्ता कई साल से टूट फूट का शिकार है। मुसाफिर 10 मिनट का सफर घंटों में तय करने लगे। मज़ीद जानते हैं वहां पर हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास वली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठरी मीरवा टू बोजदा लिंक रोड पर। ये जो रोड है ये कई सालों से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर इलाके मुकीनों और मुसाफिरों को आने जाने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। हम यहाँ के इलाके मुकीनों और मुसाफिरों से बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी ये आप देख रहे हैं ये जो ठरी मीरवा बोजदा रोड है ये तकरीबन ऐसे समझो कि 2.5 लाख आबादी वाला रास्ता है। ये जो खैरपुर मीरत सखर जाने के लिए हमें दुश्वारी होती है। कई हुकूमतें आई हैं हमारे तक का सही है। मेरे फजल शाह, पहले उसका भाई आया, फिर उसका भाई आया और साजिद बाबा ने जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ये इस रास्ते से आते हैं। हम खुदारा अभी निगरान हुकूमत जो भी आई है हम अभी उसको हाथ जोड़ देंगे। खुदारा हम कभी किसी बच्चे को स्कूल जाने में कितनी हमें तकलीफ़ हो रही है, कोई बीमार घर में पड़ जाता है तो उसको छोड़ने में हमें 2 घंटे लग जाते हैं तकरीबन 10 मिनट के सफ़र में। जो बीमार
ठरी खां बोज़दार रोड जेको ॾिसो इन जी हालत तव्हां ॾिसो त केॾी ख़राबु लॻी पई आहे। असांजी हुकूमत निंड में पई आहे, अलाए कॾहिं तव्हांजी सुजाॻ थींदी। असां ग़रीब आवाम गाॾियूं, असांजी मोटर साइकिलूं, असां किथे वञण लाइ अगरि असांखे 10 मिंटनि जी अचे असांखे कलाक थो लॻे। बोज़दार रोड जेको ठरी बोज़दार रोड खे तक़रीबन 15-20 साल थींदा ठहियो आहे त वरी हिन जी रिपेयर थी कान्हे का। 10-15 मिंटनि जो सफ़र जेको आहे सो कलाक ॾेढ लॻी थो वञे, कई दरपदर थी था वञनि। जैसे कि आपने इलाके मुकीनों और मुसाफिरों की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि ठरी मीरवाटू जो बोझदार रोड है ये 10 मिनट का रास्ता है, ये घंटों में तय करना पड़ा है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो इस रोड की जो है मुरम्मत की जाए। कैमरा डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अमर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में वाज़ेह कमी के पेश नज़र अशियाए खुरोनोश और ट्रांसपोर्ट से किरायों और दीगर अशिया के नरखों में कमी लाने के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर की ज़ेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में वाज़ेह कमी के पेश नज़र एशिया खुरोनोश ट्रांसपोर्ट के किरायों में दीगर एशिया के नरखों में कमी लाने के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ज़ुबैर अब्बासी, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अरूज फातिमा, सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान, हाफिज़ खुर्रम सलीम, अब्दुल हलीम, यासीन साबरी, तसीम शेख, सैयद सईदुद्दीन, दीगर मेंबरान ताजरान ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की रेट्स में कमी का आम आदमी तो फ़ायदा पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान और ट्रांसपोर्टर को अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में कमी के तनासब से ट्रांसपोर्ट के किरायों और एशिया खुदनौत की कीमतें कम की जाएँ। इजलास में बताया कि बस, वैगन स्टैंड और दीगर ट्रांसपोर्ट स्टैंड पर बैनर्स और पैनाफ्लेक्स आवाज़ा किए जाएँ, जिनमें कम किए गए किरायाजात दर्ज किए जाएँ। कैमरामैन खुर्रम इस्ताद के साथ। पंजाब भर की तरह तहसील कोट छुटा में भी ऑल टीचर यूनियन और सरकारी मुलाजमीन की जानिब से मर्द ख़वातीन उस्ताद ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। रैली गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से अल्लाह चौक तक निकाली गई। मज़ीद जानते हैं कोट छुटा से अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी, पंजाब भर की तरह तहसील कोटा में भी टीचर यूनियन जो हैं, असातिज़ा या ख़वातीन हैं, उन्होंने अपनी रैली निकाली हुई एहतजाज कर 7 रोज़ से यहाँ पर तालीमी निज़ाम बिल्कुल बंद किया हुआ है। एहतजाज जारी है। इनके अपने मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं वो अपने तस्लीम कराने जाते हैं हुकूमत पंजाब से, लेकिन हुकूमत पंजाब भी इस वक्त तक इनको मुतालबात तस्लीम नहीं कर रही, जिसकी वजह से आज तहसील भर के तमाम स्कूलों से असातिज़ा ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है। इस वक्त मेरे साथ असातिज़ा की नुमाइंदगी जो ओहदेदार हैं वो कर रहे हैं, उनसे वो पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि 8 दिन से असातिज़ा किराम सड़कों पर हैं और अपने जायज़ हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे मुतालबात लीव इनकैशमेंट, पेंशन रूल्स में तब्दीली और असातिज़ा का मुआशी कत्ल जो है उसको बंद किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 8 दिन से हुकूमत ट्रस्ट से मस नहीं हुई। ये उस्ताद जो कौम का बाप है, ये मेरी बहनें जो कौम की माएँ हैं, सड़कों पर रोल रही हैं। इसके मद्दे मुकाबिल उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, उन्होंने दहशत गर्दी और बदमाशी की इंतहा कर दी है, असातिज़ा पर दहशत गर्दी के पर्चे काटे गए हैं। हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं और अपने मुतालबात के पूरे होने तक इंशाअल्लाह ये तदरीसी बैकाट और तहरीक जारी रहेगी। ये एहतजाज कर रहे हैं इसलिए कि ये जो कवानीन में तब्दीली की गई है इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, और ये इसमें जो हमारे हकूक पे डाका डाला जा रहा है, ये हकूक हमारे बहाल किए जाएं। जो आइन ने हमें दिए हुए हैं पहले, उनको क्यों ख़त्म किया जा रहा है। ये हमारे अपने पैसे हैं, हमने खुद ये 30-30 साल तक कटौतियाँ करवाई हैं अपनी तनख्वाहों में से, अब उनको ख़त्म किया जा रहा है। और हमारे असातिज़ा जो गिरफ्तार हैं उनको फौरी तौर पे जो है रिहा किया जाए। जिस तरह ये ओहदेदार यूनियन के अहदेदार कह रहे थे कि हम तदरीसी अमल उस वक्त हमारा बंद रहेगा जब तक ये हमारे मुतालबात, जायज़ मुतालबात। धान और मकई एक्सपोर्ट बंद होते ही पंजाब की गल्ला मंडियों में फसलों के रेट गिर गए हैं। किसान कहते हैं कि रेट कम होने से धान और मकई की फसल के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। लागत पूरी न होने से गंदम की काश्त में किसानों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस बारे में जानते हैं पाक वतन से तारिक सजाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में।
अजनास की एक्सपोर्ट बंद होते ही गल्ला मंडियों में धान और मकई के नरख गिर गए। फसलों की काश्त पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि हुकूमत की ज़राअत पर अदम तवज्जो की वजह से किसान लुट गया। का रेट काश्तकार को 3000 से 4000 मिल रहा है, जबकि इसके बरक्स पिछले साल रेट 5000 से 6000 रुपए था। इसी तरह मकई का रेट जो 3000 था वो काश्तकार को अब सिर्फ 2000 मिल रहा है। काश्तकार को फी एकड़ 50,000 नुकसान हो रहा है। पिछले साल की निस्बत खादें, अद्वियात, डीजल हर चीज महंगी हुई है, जबकि फसलों के रेट वापस आ गए हैं। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दे रही, इसलिए जो किसान है वो 50,000 रुपया फी एकड़ नुकसान खा रहा है। अगर किसान की एक्सपोर्ट फसल की एक्सपोर्ट ना बढ़ाई गई तो किसान अगली फसल बीजने में नाकाम होगा। किसान रहनुमाओं के मुताबिक फसलों पर आने वाली लागत भी पूरी ना होने की वजह से किसान गंदम की काश्त नहीं कर सकता। हुकूमत फौरी तौर मकई और धान की एक्सपोर्ट के लिए इकदाम उठाकर ज़राअत को बचाए। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती के। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोटद्दू में भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनके इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जिला सदर अहमद यार हंजरा के हमरा मौजूद हैं। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुख्तलिफ अजला की तरह ज़िला कोटद्दू में भी उनके इस्तकबाल के हवाले से जो है वो तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर मलिक अहमद यार हंजरा, उनकी जानिब से भी जो है वो भरपूर जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं। जो मीनार पाकिस्तान पे जो यहाँ से काफ़िला रवाना होगा। मेरे साथ इस वक्त मलिक अहमद यार हंजरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या तवक्कुआत हैं, कितनी जो लोगों पर मुश्तमिल जो काफ़िला है वो आप लाहौर लेके जाएंगे? नवाज शरीफ के आने से क्या समझते हैं, मुल्क में बेहतरी आएगी, मईशत बेहतर होगी, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने भी देखा होगा कोटद्दू में पूरे मुल्क की तरह कोटद्दू में भी लोगों में बहुत जोश व खरोश पाया जा रहा है कि अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए वो चाह रहे हैं कि हम सारे मीनार पाकिस्तान पे पहुँचें। लेकिन पार्टी पॉलिसी के तहत जितना उन्होंने हमें कहा है हम उतने ही लोगों को लेके जाएंगे। वैसे जो मेरे सुनने में आया, देखने में आया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद जाना चाह रहे हैं। अब यानी कि ऑन दियर ओन वो चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचें और अपने कायद का इस्तकबाल करें। बाकी बात रही कि उनके आने से क्या तब्दीली आनी है, क्या नहीं आना, तो वो मिसालें मौजूद हैं। वो उनका जो है ना पास्ट, उनका माजी मौजूद है, सबके सामने है कि इस मुल्क में जब भी मुश्किलात आई हैं तो एक ही बंदा आया है सामने जिसने मुल्क को उन मुश्किलात से निकाला है, और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो मुझ समेत पूरी आवाम को, पूरी पाकिस्तान को ये उम्मीद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से और जब वो यहाँ पाकिस्तान में आ जाएंगे और पाकिस्तान की आवाम उन पर एतमाद करते उन्हें वोट देंगे, उन्हें कामयाब करेंगे, उन्हें फिर इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले पाकिस्तान की तरक्की में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, तो हमें पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान को इन मुश्किलात से, महंगाई के तूफ़ान से, आवाम की जो दूसरी मुश्किलात हैं वहाँ उनसे निकालने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। जी बिल्कुल, भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और एक बड़ा काफिला जो है वो लाहौर की तरफ जो है कोटद्दू से भी हंजरा ख़ानदान की ज़ेर क़यादत जो यहाँ से रवाना होगा। मज़ीद इनका यही कहना है कि कायद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है ये दोनों जो है मिल के मुल्क को जो है इस बहरान से निकालेंगे और आवाम जो एक बार फिर एतमाद करते हुए जो सानहा कारसाज के शहीदों की याद में पीपल्स पार्टी सांगड़ के जानिब से ताज़ीती कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सानहा कारसाज 18 अक्टूबर के शोधा को सलाम पेश करने के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। स्टेज तैयार, बड़ी स्क्रीन लगा दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक से खिताब भी करेंगे। कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे आतिफ अली से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांगड़ जिमखाना में। मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी आज कारसाज शहीद शोधा के लिए सुर्ख सलाम पेश करने के लिए जलसा का इनकाद किया गया है, जिसमें इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है राशिद इस्लाम मुगल चेयरमैन साहब हैं। इनसे मालूमात लेते हैं क्या तैयारियां हैं आज के जलसे के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिमखाना ग्राउंड में जो हमें 18 अक्टूबर शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है, कन्वेंशन रखा है, जिसमें हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के जो जियाले वर्कर और हमारी डिस्ट्रिक्ट की क़यादत होगी और बिलावल भुट्टो साहब जो है वीडियो लिंक पे खिताब करेंगे।
और यहाँ पर आज हम जो है अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ भी इज़हार यकजहती अपना मनाएंगे। जो इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन पे, उनके साथ भी हम खड़े, और अपने जो हमारे शोधा जो कारसाज में साइने में जो शहीद हुए थे उनके साथ भी इज़हार यकजहती और खराज तहसीन उन शोधा को पेश करेंगे। जी, जैसा कि राशिद इस्लाम मुगल साहब ने बताया कि आज सानिया 18 अक्टूबर कारसाज के हवाले से आज यहाँ पर जलसे का खबर आपको दें कि सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर। गवर्नमेंट हारून शहीद पायलट स्कूल शरकपुर शरीफ में तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। उस्ताद सरापा एहतजाज हैं। हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, तफसीलात इनसे लेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हारून शहीद पायलट सेकेंडरी स्कूल शरकपुर में, जहाँ कौम के मेमार सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा का यही कहना है कि हमें इनकैशमेंट और स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन नामंजूर। आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है और तदरीसी अमल बिल्कुल बंद हो चुका है। स्कूल में कोई भी तालिब इल्म मौजूद नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता एक हफ्ते से हमारी क़यादत को भी उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और मुज़ाकरात करने की बजाय उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया हुआ है। और जो बच्चे पढ़ने यहाँ स्कूल आते हैं, जो 20 रुपये फ़ीस देते हैं, उन पर अगर 4,000 या 5,000 का बोझ डाल दिया जाएगा तो क्या वो पढ़ सकेंगे? हमारा जो मेन मुतालबा है वो निजकारी के ख़िलाफ़ है। हम निजकारी को जो है सख्त किस्म की इसके साथ अपोजिशन करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो टीचर्स हैं इनके साथ भी एक ज़्यादती की जा रही है। हमें माली तौर पे बहरान का शिकार किया जा रहा है। जो टीचर जब ज़हनी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगा तो वो बच्चों को किस तरीके से तालीम देगा। इसलिए हम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि वो इस सिलसिले में आगे आए और मुज़ाकरात करें और हमारे मसाइल को हल करें। ऑल ओवर द पंजाब इस तमाम में स्ट्राइक जारी है। असातिज़ा ने तलीमी क्लासेस का बाइकाट किया हुआ है। असातिज़ा का यही कहना है कि 20 रुपए की फीस पे पढ़ने वाले यतीम बच्चे या मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अहमद अली सानी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी नायब अमीर मौलाना अब्दुल कादिर लोनी ने पाकिस्तान में मुकीम फ़लस्तीन सफ़ीर डॉक्टर नजीब से मुलाकात की है। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अहमद अली सानी ने बयान जारी करते हुए कहा कि मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के मरकजी नायब अमीर मौलाना अब्दुल कादिर लूनी ने पाकिस्तान में मुकीम फ़लस्तीन सफ़ीर डॉक्टर नजीब से मुलाकात की और फ़लस्तीन की भरपूर हमायत का ऐलान किया। मुफ्ती अहमद अली सानी ने मजीद कहा कि आज रात इसराइल ने फ़लस्तीन के अस्पताल पर हमला किया जिसमें 1000 से ज़ायद फ़लस्तीन मुसलमान शहीद हुए। तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उम्मत मुसलमान के लिए सोचने का मुकाम है। 58 इस्लामी ममालिक हैं और अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। 57 ममालिक की ऐसी फौज बनाई गई थी जिसका सरबराह जनरल रईस शरीफ को मुकर्रर किया गया था। वो फौज किस दिन के लिए है और किस दिन काम आएगी? इस वक्त पूरी कौम वर्ल्ड कप की गम और खुशियां मना रही है और पाकिस्तानी टॉक शोज में मज़ाहिया प्रोग्राम हो रहे हैं, जबकि आलमी मीडिया इसराइल का बयानिया भरपूर तरीके से बयान कर रहा है। और वतन अजीज पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। ये कैसा जिस्म है जिसमें एक तरफ खून की होली खेली जा रही है और दूसरी तरफ लोग क्रिकेट के खेल और मुख्तलिफ मज़ाहिया चीज़ों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये सोचने का मुकाम है। अल्लाह न करे अगर हमारी बेहिसी का यही आलम रहा तो कल ये वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। लेकिन हम कुछ कहने या करने के काबिल नहीं रहे कि अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुसलमान को एक नेक बनाने इस वक्त जरूरत है कि जो हजरात पुरसरार इक़्तिदार और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान होश के नाहुन लें। नारों और मज़ामती बयानों से हटकर एक ठोस लाए अमल चाहिए। वो OIC के जरिए हो या किसी और प्लेटफार्म के जरिए एक जुबान होकर जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। मज़ामती बयानात और हमायत से अब कुछ नहीं होगा। अब हुकूमत पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को अमली तौर पर कोई कदम उठाना पड़ेगा। सेक्रेटरी तराल लाहौर कारी मियाँ मोहम्मद अजीम अनवर ने कहा और तमाम इसराइली मौज़ूआत का CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मॉडल बाजार सब्ज़ाजार और मॉडल बाजार मियाँ प्लाजा का दौरान विजिट CIA फरहान दिलावर और GM प्रोजेक्ट सदाम हुसैन भी हमरा थे। दुकानदारों और ग्राहकों के साथ गुफ्तगू की, मसाइल पूछे गए। इस मौका पर शाहिद कादिर का यह कहना था कि टेक्सटाइल फाइबर का काम मुकम्मल होने पर लोग बहुत खुश हैं।
ہماری کامیابی ہے. ہمارا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے. 2 ضعیف العمر دکانداروں کے نصف کرائے معاف کر دیے گئے. بہترین پرفارمنس پر جی ایم پروجیکٹس اینڈ آپریشن صدام حسین شاباش کے مستحق ہیں. اور خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیوز.